Hello everyone, welcome to easyfimarketing.co.in. It's a bulk WhatsApp application in the API application. You can use this application to promote your business if you want to reach out to the maximum people by sending them a WhatsApp messages or connecting WhatsApp API to the third party application and manage your entire business. You can do such activities by using this application. Okay, so this is the home page. When you log in into the easyfimarketing.co.in, you will find this page. Now unfortunately I have logged in by the admin account, but if you are a normal user, then you will be able to see only dashboard, WhatsApp, account manager, file manager, caption, support. That's all. Rest of the features are for admin users, but we will ignore that and we'll go ahead with the tutorial. Okay, so the first and foremost thing which you need to do is click on WhatsApp on the main menu. There is a plus icon button which says add account. You just have to click on that. This will display the QR code. You just have to scan the QR code and we are ready to go. Okay, I already scanned couple of numbers, so I won't be scanning new number. So let's take this number and move further. When you click on this number, you will be able to see couple of more elements of the application. Okay, so these are the side menus wherein we have profile, autoresponder, bulk messaging, chatbot, template, export participant in a group, and link generation. So we'll go through each module one by one. Now when you click on profile, it is just an information display wherein you will find the access token and the instance ID of your number, which you can use to use the REST API application from this application to integrate this with third party application such as CRM or ERP, or if you have a billing system, so you can use this application or these details to integrate with that. When you click on autoresponder, you can define the autoresponder. So what autoresponder does is, if you configure the autoresponder and if someone sends you a message on this number, they will get an immediate response explaining about the whereabout your company or give them some more details. ठीक है, तो ये इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं बता देता हूँ. सॉरी, आई वाज रिक्वेस्टेड टू क्रिएट अ वीडियो इन हिंदी इंग्लिश बोथ, बट आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एक डिफ़ाइन कर देता हूँ. मैं इसको इनेबल कर देता हूँ. मैं सेंड टू ऑल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ. हाय, दिस इज़ ऑटो रिस्पॉन्डर टेस्ट. अभी यहाँ पे मैं रीसबमिट इंटरव्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ. मतलब अगर 1 मिनट बाद अगर उसी कस्टमर ने वापस आपको मैसेज किया तो वापस ये रिस्पांस उसको ट्रिगर होगा. अगर मैं उसको बढ़ाता हूँ तो उतने टाइम पे वो रिस्पांस ट्रिगर नहीं करेगा. अभी मैं 1 ही मिनट का रहने देता हूँ एंड आई विल सिंपली क्लिक ऑन सबमिट. तो ये जो नंबर आपने स्कैन किया हुआ है 9426350297, इस पर अगर किसी ने मैसेज कर दिया तो आपको एक इमीडिएटली ऑटो रिस्पॉन्डर ट्रिगर मिल जाएगा. मैं करके दिखाता हूँ आपको. तो ये जो नंबर है इस पे ऊपर मुझे मैसेज करना है. मैं सिर्फ हाय लिख के भेजता हूँ तो इमीडिएटली मुझे रिप्लाई आ जाएगा, हाय दिस इज़ ऑटो रिस्पॉन्डर टेस्ट. अभी कुछ और चीज़ें भी सेट की हुए हम लोगों ने, इसके लिए वो ट्रिगर कर रहा है. बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ऑटो रिस्पॉन्डर वर्क्स लाइक दिस. मैंने हाई किया तो उस नंबर से हाई दिस इज़ ऑटो रिस्पॉन्डर टेस्ट का मैसेज आया मुझे. ठीक है, तो ऑटो रिस्पॉन्डर ऐसे काम करता है. ऑटो रिस्पॉन्डर में भी आप बटन यूज़ कर सकते हो, लिस्ट यूज़ कर सकते हो. बटन्स क्या है, लिस्ट क्या है, मैं आगे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो उसके बाद बल्क मैसेजिंग का मॉड्यूल है जिसमें कॉन्टैक्ट ग्रुप, क्रिएट कैंपेन, कैंपेन रिपोर्ट और व्हाट्सएप शेड्यूल, ये 4 ऑप्शंस हैं. कॉन्टैक्ट ग्रुप में जाके आप कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं. अगर कॉन्टैक्ट ग्रुप पे क्रिएट किया तो जहाँ पे ऑलरेडी आपके ग्रुप क्रिएटेड है वो सारे आपको दिखाई देंगे. तो ये सारे ग्रुप्स है जो हमने क्रिएट किए थे. अभी हम ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे. टेस्ट नाम डाल देता हूँ मैं, सबमिट कर देता हूँ मैं. तो एक ब्लैंक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे.
तो ये ब्लैंक ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके ये दो मेथड से मैं कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। या तो मैं इंपोर्ट डाटा फ्रॉम फॉर्म करके एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके या मैन्युअली टाइप करके डाल सकता हूँ मैं, और उसको सबमिट कर सकता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट ऐड हो गया। दूसरा तरीका ये है कि वापस इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके मैं जो एग्जाम्पल टेम्पलेट है उसको डाउनलोड कर लूँ। ये एग्जाम्पल टेम्पलेट मैंने खोल लिया है और इसी फॉर्मेट में मुझे डिटेल्स डालने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूसरा नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम डाल दे दिया। ये डालना है नहीं डालना है आपके ऊपर है। मैं उसको सेव कर देता हूँ और इस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ये दो कॉन्टैक्ट आ गए यहाँ पे। एक हमने मैन्युअली चढ़ाया हुआ है और दूसरा हमने एक्सेल शीट से चढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट इंपोर्ट ऐसे काम करता है। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल है क्रिएट कैंपेन। मैं एक कैंपेन क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैंपेन का मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेगा। अभी हमने जो क्रिएट किया हुआ है टेक संदीप, उसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं। यहाँ पे कुछ भी हाय टेस्ट मैसेज रैंडम मैसेज डाल दूँगा मैं। यहाँ पे आप इंटरवल डाल सकते हो कि हर कितने सेकंड में वो मैसेज जाना चाहिए। तो ये 5 सेकंड मिनिमम गैप करके मैंने शेड्यूल पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो व्हाट्सएप शेड्यूल पे आ जाएगा जैसे ही कैंपेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक मैसेज गया। अगर आप वापस उसको व्हाट्सएप शेड्यूल पे क्लिक करके उसको रिफ्रेश करोगे, अगर मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप में देखूँ तो मुझे मैसेज आ गया है। अनफॉर्चुनेटली दूसरा नंबर यहाँ पे स्कैन नहीं है, इसके लिए मैं नहीं दिखा सकता, बट एक नंबर पे मैसेज डिलीवर हो गया है। ठीक है, तो ये एक सिनारियो होगा मैसेज क्रिएट करने का कि आपने नॉर्मल कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट किया, आपने राइट कर दी, आपने टाइमलाइन स्पेसिफाई कर दिया और मैसेज को भेज दिया। अभी उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आप यूज़ कर सकते हो। आप उसमें बटन्स यूज़ कर सकते हो, आप उसमें कॉल एक्शन बटन, लिंक बटन यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। तो उसके बाद हम आते हैं, तो हम आएंगे टेम्पलेट पे। तो यहाँ पे लिस्ट टेम्पलेट और बटन टेम्पलेट है। अभी मैं सिर्फ बटन टेम्पलेट आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। लिस्ट टेम्पलेट वैसे ही काम करता है। बटन टेम्पलेट में जाऊँगा, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक कर लिया मैंने, बटन का नाम दिया मैंने संदीप, उसमें टेक्स्ट डाल दिया कि हाय दिस इज टेस्ट बटन। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मैं। एक बटन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे पहले टेक्स्ट बटन क्रिएट कर देते हैं, टेस्ट, और इसमें भी डालता हूँ टेस्ट। न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लिया मैंने। यहाँ पे और एक बटन क्रिएट करेंगे। चलो बनाते हैं उसको कॉल एक्शन बटन। तो कॉल अस और नंबर डाल दूँगा मैं 7385085189 और उसको मैंने सबमिट कर दिया। तो ये बटन क्रिएट हो गया जिसका नाम दिया हमने संदीप। तो उसको हम यूज़ करेंगे। अभी मैं वापस बल्क मैसेजिंग में जाके क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, वही कॉन्टैक्ट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया हमने जो क्रिएट किया था। इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट एंड मीडिया मैं यहाँ पे बटन सेलेक्ट करता हूँ, संदीप डाल दिया मैंने यहाँ पे बटन, और 5 सेकंड का टाइम गैप पे मैंने शेड्यूल कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे इस नंबर पे बटन रिसीव होगा। ये बटन यहाँ पे आ गया है। तो ये काम ऐसे करता है, हाय दिस इज टेस्ट बटन, और ये दो बटन हमने जो क्रिएट किए थे। ठीक है, सो दिस इज़ वन सिनारियो। तो वैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करके अपना कैंपेन चला सकते हो। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि चैटबॉट। तो चैटबॉट और ऑटो रिस्पॉन्ड में मेजर फ़र्क क्या है कि ऑटो रिस्पॉन्डर जब आप सेट करते हो
तो कस्टमर आपके नंबर पे कोई भी कंटेंट लिख के मैसेज करे तो उसको इमीडिएटली वो चैट ऑटो रिस्पॉन्डर का जो कंटेंट है वो ट्रिगर होगा। बट चैटबॉट में ऐसा नहीं है। चैटबॉट में आप कीवर्ड डाल सकते हो कि अगर कस्टमर ने कुछ स्पेसिफिक मैसेज किया, किसी स्पेसिफिक कंटेंट मैसेज किया, तब भी वो रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा। ठीक है, तो हम एक बना के देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इनेबल कर दिया उसको, सेंड टू ऑल कर दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया हाउडी। तो अगर कस्टमर हाउडी क्रिएट करेगा तो ही मुझे वो रिप्लाई जाना चाहिए। इसके लिए मैं कीवर्ड में हाउडी टाइप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ हाउडी टेस्ट, और मैंने उसको सेव कर दिया। ठीक है, तो इस नंबर पे अगर मैं सिर्फ हाई करूँगा तो जो मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर में वगैरह डाला है वो एज इट इज़ आएगा। अगर मैं यहाँ पे हाउडी टाइप करूँगा तो इमीडिएटली मुझे वो रिप्लाई आएगा जो मैंने सेट किया हुआ है, दिस इज़ हाउडी टेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें भी आप बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करके, यहाँ पे कुछ सैम्पल्स हैं जो हमने बनाए, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि बाय पैनल नाउ पे अगर किसी ने क्लिक कर दिया है, टाइप कर दिया, तो वहाँ पे वो ट्रिगर हो जाएगा। ये जो ट्रिगर है आप इन टेम्पलेट के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने मैसेज किया था हमको टेस्ट। ठीक है, तो जो टेस्ट का बटन जो हमने क्रिएट किया था उसको हम एक बार देखते हैं। ठीक है, टेस्ट। अभी हम क्या करेंगे, टेस्ट नाम का हम एक ये बनाएंगे, चैटबॉट बनाएंगे। मैंने नाम दे दिया टेस्ट और कीवर्ड में डाल दिया टेस्ट। कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख दो, दिस इज़ टेस्ट बटन चैटबॉट रिप्लाई। मैंने उसको सेव कर दिया। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा टेस्ट पे तो इमीडिएटली मुझे रिप्लाई आ जाएगा, दिस इज़ द टेस्ट बटन चैटबॉट रिप्लाई। ठीक है, तो ये बटन के साथ भी आप उसको हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट इन ग्रुप है। इसको काम करने का, इस पर वर्क करने का थोड़ा तरीका अलग है। आपके मोबाइल पे जो आपने स्कैन किया हुआ बहुत सारे ग्रुप्स है। ठीक है, तो जिस ग्रुप पे रीसेंट मैसेज है वही ग्रुप वहाँ पे दिखाता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरे इसमें कुछ ग्रुप है या नहीं है। तो ये नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, बट ग्रुप पे कोई रीसेंट मैसेज आया तो आप यहाँ पे रिलोड पे क्लिक कर देगा, यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा ग्रुप, आप उसको एक्सपोर्ट कर लो बस। लिंक जनरेशन वही है कि आप अपने नंबर का प्री डिफाइंड लिंक जनरेट कर सकते हो। तो अगर उस नंबर पे किसी ने क्लिक किया तो आपको इमीडिएटली चैटबॉट ओपन करके वो आपके साथ चैट कर सकता है। ठीक है, देयर इज़ अ रेस्ट एपीआई ऑल्सो। रेस्ट एपीआई कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंड टेक्स्ट एपीआई है। अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ कोड टेस्ट करने के लिए और उसको नोटपैड में डाल देता हूँ ताकि मुझे एडिट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से तो सबसे पहले तो हमारा वेबसाइट का नाम है, फिर api-send.php और उसके बाद नंबर लिखना है हमको। तो नंबर मैंने लिख दिया 9960465189। ठीक है, ये टेस्ट मैसेज एज इट इज़ रहने देते हैं, उसको एडिट नहीं करते हैं। और मुझे यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी डालना है। तो मैं प्रोफाइल में जाऊँगा, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था। प्रोफाइल में मैं टोकन आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यूजुअली टोकन आईडी सेम रहता है, बस आपको इंस्टेंस आईडी चेंज करना है। इंस्टेंस आईडी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगर इस यूआरएल को कॉपी करके मैं ब्राउज़र में पेस्ट करके एंटर करूँ तो ये एपीआई ट्रिगर होगा, सक्सेस मैसेज आ गया और मुझे ये मैसेज भी आ गया यहाँ पे, टेस्ट मैसेज। सो बाय यूजिंग दिस रेस्ट एपीआई यू कैन इंटीग्रेट दिस विथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। यहाँ पे बटन टेम्पलेट का एपीआई कोड है, सेंड फाइल का एपीआई कोड है। आप एपीआई कोड यूज़ करके इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, क्यूआर कोड डिस्प्ले करा सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, यहाँ पे वेब हुक सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट। ये दिस इज़ द ट्यूटोरियल टू हाउ टू यूज़ easyfymarketing.co.in वेबसाइट। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मैं ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन फील्ड में वीडियो के,
आप कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।